Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you to the 19th lecture on the course Organizational Behavior. So before we start with the 19th lecture, let's have a recap of 18th lecture and then we'll move on to the contents of the 19th lecture. So during our 18th lecture, we had a discussion, we basically concluded the leadership theories and the different leadership styles and the leadership model. With respect to that, we discussed the LMX theory, wherein we saw that how the quality of relationship between the supervisor and his subordinates, it's basically the study of that quality of relationships. So we discussed that the relationship quality can be high, relationship quality can be low, and depending upon that, the leader distinguishes between the members and puts them into in-groups or the out-groups. So out-groupers, they have low quality relations, and the in-groupers have a high quality relations. And we also saw the consequences of this kind of grouping for the subordinates, because the in-groupers, they enjoy better resources and more better distribution of the organizational resources and better task assignments and more challenging assignments and better rewards. Compared to that, the outgroupers don't get them. And we also discussed that how the theory basically has been criticized, that it's not a fair treatment with the employees, because they are all not treated equally, but the theory contributes, and the theory contends that there is no equal treatment of the subordinates, but yes, there is equitable treatment, because such distribution is based upon the previous performance of the employees. So the employees who have been performing consistently better, they are put in groups by the leader, and the ones who are not consistently performing better, they are put in out groups. And this is better for the leader if he distinguishes between the subordinates basing on their performance, because then the leader can get better work, more work done without any element of risk, and with more trust, and with more confidence, he or she can get the work done from the employees who have been consistently performing better. तो वो उनको ज़्यादा challenging tasks future में assign कर सकता है. तो this is how it makes the leadership more effective as per this theory. उसके बाद हमने इंस्पिरेशनल अप्रोचेस टू लीडरशिप भी देखी थी, जिनमें हमने ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को डिस्कस किया. वी सॉ कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में हाउ देयर इज बेसिकली फोकस और एम्फेसिस जो है दैट इज ऑन द, जैसे कि वी आल्सो सॉ इन द कैरिस्मेटिक लीडरशिप में जैसे हमने देखा था कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में भी जो बेसिकली कैरिस्मेटिक लीडरशिप, दैट हैज बीन द टर्म्स वी डिस्कस्ड, दे हैव बीन यूज्ड इंटरचेंजेबली. लेकिन ये कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है वो उसका एक पार्ट समझा जाता है कैरिस्मेटिक लीडरशिप को. सम ऑफ द स्टडीज और सम ऑफ द रिसर्चर्स बिलीव सो कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है, इट्स नॉट नेसेसरी कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो है वो एक कैरिस्मेटिक लीडर, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर भी हो, बट एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो है उसमें कैरिस्मेटिक लीडर की क्वालिटीज होंगी. बिकॉज यू सी दैट कैरिस्मेटिक लीडर जो है, ही इज ऑल्सो द वन जो कि जिसका विजन के ऊपर एम्फेसिस होता है, जो एक विजन देता है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ही हैज अ विजन, ही इज अ फोरसाइट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, वेयर ही वांट्स टू सी द ऑर्गेनाइजेशन. वो उसके लिए विजन डिफाइन करता है, मिशन बनाता है, फिर वो लोगों को मोटिवेट करता है अब थ्रू हिज ओन एक्ट्स, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को प्रमोट करता है, और लोगों को ये अप्रोच रहता है कि वो अपने ही हिमसेल्फ सबऑर्डिनेट्स हिज पर्सनल गोल्स ओवर द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, एंड ही ट्राइज टू इनकलकेट थ्रू हिज ओन एक्ट्स दिस द सेम विजन एंड द सेम अंडरस्टैंडिंग इनटू द एम्प्लॉयज. उनमें इम्पार्ट करने की कोशिश करता है, इनकलकेट करता है दैट मोटिवेशन दैट दे हैव टू सबऑर्डिनेट देयर पर्सनल गोल्स ओवर द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. उनको मोटिवेट करता है कि हाउ द रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड the company mission and vision is important for the long term survival of the company and for themselves. ठीक है, तो he is basically a visionary leader, and similar are the qualities that are followed by a transformational leader. हमने इनके कुछ differences भी डिस्कस किए, और जो आपको आने चाहिए between the transformational and the charismatic leader, और हमने इनकी similarities भी डिस्कस की कि इनकी point similarities क्या हैं.
ठीक है। और फिर हमने ये भी देखा कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स जो हैं दे आर रिपोर्टेड टू शो उनकी जो परफॉर्मेंस है सबॉर्डिनेट्स की, जो ये परसीव करते हैं दैट देयर लीडर इज ट्रांसफॉर्मेशनल, हाउ दैट इज मच बेटर कंपेयर टू द ट्रांजैक्शनल लीडर्स। उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी परफॉर्मेंस, ओवरऑल सेटिस्फैक्शन उन सबॉर्डिनेट्स की हुज लीडर्स आर ट्रांसफॉर्मेशनल, दैट इज रिपोर्टेड टू बी मच बेटर। ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस इफेक्टिवनेस जो है वो ज्यादा होती है दोज फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशंस हु आर रिपोर्टेड टू बी लेड बाय द कैरिस्मेटिक और द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स। ठीक है। हमने डिफरेंसेस में ये भी देखा कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है आपका, वो तो किसी भी एक डिपार्टमेंट लेवल पे भी हो सकता है, मैनेजर ब्रांच लेवल के ऊपर भी हो सकता है, लेकिन जो आपका कैरिस्मेटिक लीडर है, ही मे नॉट नेसेसरीली बी, बिकॉज ही इज बेसिकली कैरिस्मेटिक लीडर का मेन रोल क्या है कि विजन देता है एक ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है। कॉर्पोरेट विजन देता है, उस कंपनी को एक विजन देता है, उसको लॉन्ग टर्म जो है ग्रोथ प्लान देता है, चार्टर देता है कि हाउ द कंपनी हैज टू गो अबाउट इन द लॉन्ग रन। और दैट इज वाई जो कैरिस्मेटिक लीडर्स हैं वो नॉर्मली यूजुअली जो एसोसिएट होता है उनका कॉन्सेप्ट दैट इज विद द जो टॉप मैनेजर्स हैं, ये सीईओज हैं, उनके साथ एसोसिएटेड है। व्हेन वी थिंक ऑफ कैरिस्मेटिक लीडर्स वी यूजुअली थिंक ऑफ द सीईओज या इनके, बट नॉट ऑफ द लोअर लेवल के जो मैनेजर्स हैं या लोअर लेवल के जो ब्रांच मैनेजर्स या टीम मैनेजर्स हैं, उनके ऊपर वी डोंट थिंक ऑफ देम व्हेन वी आर थिंकिंग ऑफ द कैरिस्मेटिक लीडर्स, बिकॉज ऑफ द जो विजन का कॉन्सेप्ट है। और जो आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि कैसे जो विजन है दैट इज रिलेटेड टू द कॉर्पोरेट डेवलपमेंट या स्ट्रेटजी के साथ, ये कॉर्पोरेट जो आपके हाईएस्ट लेवल के ऊपर है विजन आपकी बनती है, जो मैनेजर्स हैं सीईओज हैं वो बनाते हैं, राइट। उसके बाद हमने फिर ट्रांजैक्शनल लीडर्स को देखा और हमने भी डिस्कस्ड कि कैसे जो ट्रांजैक्शनल लीडर्स हैं उसमें वो बेसिकली हाउ दे उनके हमने डिफरेंट जो हैं वो लेवल्स के ऊपर ट्रांजैक्शनल के लेजिस्फेयर लीडरशिप को हमने देखा कि हाउ द लेजिस्फेयर लीडरशिप जो है वो कैसे बेसिकली उसमें फ्री स्टाइल है लीडरशिप का। जो लीडर है ही इज नॉट बेसिकली द सबऑर्डिनेट्स आर बेसिकली द फ्री राइडर्स, द लीडर हैज मिनिमल इंटरफेरेंस और डायरेक्शन गिवन टू द एम्प्लॉइज, दे आर गिवन द गोल्स एंड दे आर सपोज टू उनको कंप्लीट करना, फिनिश करना टास्क को कैसे हो रहा है, इट्स ऑल अप टू देयर डिस्क्रिशन एंड इट्स ऑल अप टू देयर चॉइस दैट हाउ दे आर डूइंग इट एंड हाउ। फिर पैसिव स्टाइल हमने देखा लीडरशिप का, एक्टिव स्टाइल हमने देखा लीडरशिप का, ठीक है। और जो फिर ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड हमने लीडरशिप या टास्क ओरिएंटेड हमने लीडरशिप देखी, जिसमें जो लीडर है वो सबऑर्डिनेट को बेसिकली ही गिव्स द गोल्स एंड ही इज बेसिकली उसको चेक कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो हमने डिफरेंट जो लेवल्स के ऊपर देखा कि ट्रांजैक्शनल लीडरशिप को, और वी ऑल्सो डिस्कस्ड कि जितना लेसिस-फेयर होता जाएगा स्टाइल, जितना ज़्यादा लेसिस-फेयर है उतनी ही वो सेटिस्फैक्शन और परफॉर्मेंस जो है वो कम नॉर्मली होती है, और जितना एक मीडियम से परफॉर्मेंस भी डिस्कस्ड के होती है जब आपका ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर हमने भी डिस्कस्ड के कैसे उसके आउटकम्स जो हैं दे आर मच मोर कंपेयर टू एक लेसिस-फेयर जो लीडरशिप स्टाइल है उससे। और इसी तरह फिर जो पैसिव लीडरशिप स्टाइल है जिसमें आप व्हेन द एम्प्लॉइज वंस दे हैव डन द मिस्टेक्स अगर हो गई हैं तो फिर द लीडर कम्स इन देयर एंड देन ही मेक्स फॉर द करेक्शंस एंड द करेक्टिव मेजर्स एंड करेक्टिव एक्शंस व्हेन समटाइम्स इट इज क्वाइट लेट। ठीक है। तो वो एक पैसिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। Then we also discussed the ethical leadership, और ये हमने भी discussed it in relation to, इसकी मैंने आपको examples कुछ बताई थी कि कैसे जो charismatic leaders हैं, how some of the charismatic leaders in the history they have been reported to, जैसे CEOs वगैरह हैं कुछ companies के, how they have been reported to be unethical leaders, और दो charismatic but unethical। और इसके in relation to this आपके book में हिटलर की example भी दी हुई है that he has been a charismatic leader, a lot of people have been following him, उसके vision को follow किया, उसने मोटिवेट किया टुवर्ड्स द विजन ही सेट टू अ लॉट ऑफ पीपल, बट हाउ उसकी जो विजन थी दैट वाज डिस्ट्रक्टिव, दैट वाज अ डिस्ट्रक्टिव विजन, दैट वाज एन अनएथिकल विजन, एंड हाउ दैट वाज फॉलोड बाय अ नंबर ऑफ पीपल। देयरफॉर देयर इज अ डिफरेंस दैट इट्स नॉट नेसेसरी कि कैरिस्मेटिक या ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर हो और वो एथिकल भी हो, ठीक है, या वो उसके वो आउटकम्स तो डिराइव कर सकता है, लेकिन अगर वो टारगेट्स या गोल्स ही नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव हों, ऑल्दो उन गोल्स के ऊपर
परफॉर्मेंस माइट बी वेरी गुड, ठीक है, एम्प्लॉइज जो है वो उनके ऊपर परफॉर्म भी करें, उनको अचीव भी कर लें उन गोल्स को, बट इफ द गोल्स आर नेगेटिवली सेट, इफ दे आर अनएथिकल गोल्स, इफ दे आर डिस्ट्रक्टिव गोल्स, अगर उनमें सोशल एलिमेंट नहीं है, सोशल कंसर्न नहीं है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो व्हाट अबाउट दोज गोल्स, ठीक है। और देयरफॉर जो लीडर है ही और शी आल्सो हैज टू बी एथिकल, ठीक है। और जैसे हमने डिस्कस किया कि जो कैरिस्मेटिक लीडर्स हैं, सम कंपनीज जो हैं दे आर फॉर एग्जांपल दे हायर द यस पीपल, और ये बहुत ज़्यादा इट्स बिग प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। अभी भी जब हम आगे अपना आज का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं तो उससे उन रिलेशन टू दैट भी हम देखेंगे कि कैसे कंपनीज जो हैं वो जब व्हेन दे सीईओ स्पेसिफिकली जो काफ़ी सारे ये रिपोर्ट होते हैं कि वो दे डोंट वांट टू बी चैलेंज, दे डोंट वांट टू बी क्वेश्चनड, दे जस्ट वांट टू गिव ऑर्डर्स एंड दे जस्ट वांट यस पीपल अराउंड देम। और फिर इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं उनमें क्या है कि आपको यू आर अनएबल टू बी चैलेंज्ड, आपका एक मोनोपोलिस्टिक एनवायरनमेंट है। और आपको पता है कि जब मोनोपोलिस्टिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए तो उसमें क्या होता है कि उसमें फिर एक देयर कैन बी एन एलिमेंट ऑफ अनार्की हो सकता है, उसमें डेमोक्रेटिक एक वे नहीं रहता ना सॉल्यूशंस का, डेमोक्रेटिक वे नहीं रहता कि टू सी द प्रॉब्लम्स फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट, एंड इट हैज़ देन इट्स उसके फिर फ्लॉज होते हैं, ठीक है। तो जो एथिकल लीडरशिप है बेसिकली इट हैज़ टू बी, द लीडरशिप हैज़ टू बी एथिकल। आपने अपने जैसे वी आल्सो डिस्कस्ड कि कैसे मिसयूज करते हैं लीडर्स ने, फिर जो कॉर्पोरेट फ्रॉड्स हुए एनरॉन के, वर्ल्ड कॉम के, व्हाई वर दे व्हाट आर दे आर द बिगेस्ट एग्जांपल्स ऑफ अनएथिकल लीडरशिप, राइट। सो एथिकल लीडरशिप को, उसके बाद हमने सेल्फ लीडरशिप को डिस्कस किया, जिसमें हमने ये देखा कि कैसे जो है अभी सेल्फ ऑटोनोमस टीम्स का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें सेल्फ मैनेज टीम्स का कॉन्सेप्ट है, विच आर नॉट लेड बाय एनी लीडर्स बट द टीम मेंबर्स दे आर सपोज टू लीड देम सेल्स, ठीक है। वो अपने लिए देयर सेल्फ डायरेक्टेड गोल्स होते हैं उनके, दे आर अकाउंटेबल फॉर द गोल्स दैट दैट हैव बीन सेट फॉर देम एंड दे हैव टू अचीव देम बाय सेल्फ डायरेक्शन, बाय सेल्फ डायरेक्ट करना होता है उन्होंने, और वो दे हैव टू अचीव देम इन एक म्यूचुअल अपने कोहेसन और अंडरस्टैंडिंग के साथ, एंड they have to achieve them, but there is no leader. तो increasingly जो concept है self leadership का भी, self managing teams का, self leaders का, specifically जो जैसे cross functional teams हैं उनमें या सॉरी जैसे मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें आप देखें कि they are basically उनका स्ट्रक्चर कैसे बिल्ट अप होता है on the cross functional teams के ऊपर और self managed teams के ऊपर, ठीक है। और वो क्या है वहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है increasingly जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस फ्लैटर हो रही हैं, स्ट्रक्चर्स जो हैं which are becoming more and more team based स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है कि फिर आपकी जो सेल्फ मैनेज टीम्स हैं देयर कॉन्सेप्ट इज ऑन द इंक्रीज, एंड दिस सेल्फ मैनेज टीम्स बेसिकली क्या है, उनमें सेल्फ लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है, तो इसको हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमने मेंटरिंग को देखा, और मेंटरिंग में मैंने आपको बताया कि कैसे जो करियर मेंटरिंग भी प्रोवाइड की जाती है और साइकोलॉजिकल मेंटरिंग भी प्रोवाइड की जाती है, सोशल एस्पेक्ट्स के ऊपर मेंटरिंग प्रोवाइड की जाती है। इनफॉर्मल मेंटरिंग को हमने डिस्कस किया, फॉर्मल मेंटरिंग को हमने डिस्कस किया। वी ऑल्सो सॉ कि मेंटरिंग जो है वो मेंटोर्स और मेंटीज जो है उनमें रिलेशनशिप्स जो है हाउ दे आर एस्टैब्लिश्ड, कैसे मेंटीज को असाइन किया जाता है टू द मेंटोर्स, उनमें जेंडर डिफरेंसेस, डेमोग्राफिक डिफरेंसेस को कैसे देखा जाता है। फिर ये कि आपका जो अपना डायरेक्ट सुपरवाइजर है, हाउ यू प्रेफर इस तरह के जो मेंटरिंग अरेंजमेंट्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर्मल मेंटरिंग अरेंजमेंट, उनमें ये इट शुड बी आइडियली ये एफर्ट होनी चाहिए कि जो मेंटर है वो आपका जो सुपरवाइजर है वो आपका मेंटोर ना हो, राइट। और वाई इस तरह के मेंटरिंग अरेंजमेंट्स को क्यों किया जाता है, इसलिए क्योंकि जो आपका सुपरवाइजर है ये जो वो ही सिंस ही और शी इज आल्सो योर बॉस, उसने आपकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करना होता है और आप में भी उसके साथ इतना सेटिस्फाइड नहीं होते, और यू मे नॉट बी दैट कंफर्टेबल शेयरिंग योर प्रॉब्लम्स, आप अपने पर्सनल इश्यूज, बिकॉज मेंटरिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपने जो पर्सनल सोशल इश्यूज हैं, हाउ यू हैव टू डील विद देम, वर्क फैमिली इश्यूज हैं, ठीक है, अपने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, आप यू ऑल्सो नीड मेंटरिंग ऑन देम, ठीक है। जैसे एक फीमेल फीमेल एम्प्लॉई और सबॉर्डिनेट और अ फीमेल जूनियर एम्प्लॉई हैज अ फीमेल सीनियर मेंटोर जो कि एक मैनेजर है, हु हैज बीन अ सक्सेसफुल मैनेजर, तो उसने वो अपना जो करियर पाथ है बीइंग अ फीमेल, व्हाट हर्डल्स शी फेस्ड, और दिस फीमेल व्हाट हर्डल्स शी इज फेसिंग, सो शी माइट बी अ मोटिवेशन फॉर हर। जब वो अपनी स्टोरी उसके साथ शेयर करेगी तो दैट माइट बी अ मोटिवेशन फॉर हर कि वो कैसे जो है वो अपना जो इश्यूज हैं या प्रॉब्लम्स हैं, हाउ शी फेस थ्रू देम एंड हाउ शी इवेंचुअली इमर्ज सक्सेसफुल आफ्टर डीलिंग विद ऑल दोज चैलेंजेस इन विच शी केम अक्रॉस ड्यूरिंग हर करियर। तो इस तरह से फिर जो करियर एस्पेक्ट्स हैं आप उनके ऊपर मेंटरिंग ले सकते हैं। तो ये हमने डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स थे मेंटरिंग के, इनको हमने डिस्कस किया, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटरिंग की, हाउ मेंटरिंग, व्हेन कैन इट बी सक्सेसफुल, फॉर्मल, इनफॉर्मल मेंटरिंग, ये सारे इश्यूज जो हैं ये हमने डिस्कस किए विद रिस्पेक्ट टू मेंटरिंग, एंड दैट वाज द
LMX वाला जो हमारा चैप्टर था दैट केम द एंड ऑफ द LMX चैप्टर। उसके बाद हमने देखा कि लीडरशिप चैप्टर को हमने इस तरह से क्लोज किया अपने लीडरशिप मॉडल को। उसके बाद टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉन्फ्लिक्ट नेगोशिएशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का और एजेंडा भी हमारा थोड़ा सा टाइट है, बट वी आर सपोज टू फिनिश इट ऑफ टुडे। इसको हम एक्सपेंड, वी वॉन्ट बी टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेक्चर, वी विल जस्ट बी फिनिशिंग इट ऑफ राइट नाउ। अच्छा, उसके बाद ये कि इसमें आप देखें कि ऑब्जेक्टिव्स फॉर टुडेज एजेंडा वी हैव, वी विल बी सीइंग व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट, विल डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट व्यूज ऑन कॉन्फ्लिक्ट, द ट्रेडिशनल, द ह्यूमन रिलेशंस एंड इंटरेक्शनिस्ट व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को हम देखेंगे और इनमें हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो आपको इनमें जो बेसिकली डिफरेंशिएट हम चीज़ों में, व्यूज़ में उस वक्त कर सकते हैं जब हमें उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, जब हमें उन्हें व्हेन वी नो द कॉन्सेप्चुअल डिफरेंसेस बिटवीन द डिफरेंट व्यूज़, ठीक है, या डिफरेंट एप्लीकेशंस के बारे में या बिटवीन एनी डिफरेंट इवेंट्स या किसी भी चीज़ के बारे में हम डिफरेंशिएट उस वक्त, सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हम उसी वक्त फाइंड कर सकते हैं जब हमें उनके बारे में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, व्हेन वी आर एबल टू मेक अ कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन ऑल दोज डिफरेंट व्यूज़ एंड डिफरेंट अप्रोचेस। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है कि आप इन तीनों व्यूज़ के बारे में यू कैन गिव अ समरी अबाउट ऑफ ऑल दीज डिफरेंट व्यूज़, बट यू मे नॉट बी एबल टू, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है और अगर आपकी एक साउंड अंडरस्टैंडिंग नहीं है कॉन्सेप्ट्स की, तो फिर क्या होगा कि आप उनमें जो कंपैरेटिव एनालिसिस है वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस जो है उनमें यू मे नॉट बी एबल टू पॉइंट आउट दोज सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस, ऑल्दो यू मे बी एबल टू समराइज दोज। तो इसलिए जब आपको पेपर में या एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन के पूछा जाए कि उनमें कंपैरेटिव एनालिसिस करें, उनकी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस को पॉइंट आउट करें, तो यू आर नॉट आस्क्ड टू प्रोवाइड देयर उनके आप समरीज की आपको नहीं कहा जा रहा होता वहाँ पे प्रोवाइड करने का, लेकिन आपको ये कहा जा रहा होता है कि उनमें कंपैरिजन करें। तो यू हैव टू कंपेयर दोज डिफरेंट अप्रोचेस ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स। ठीक है, तो इसमें ये डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है समरी प्रोवाइड करने में और कंपैरेटिव एनालिसिस करने में। ठीक है, आपने वो कैसे, सो कंपैरेटिव एनालिसिस हैज़ टू बी मोर क्रिटिकल, उसको होना चाहिए। ठीक है, दैट हैज़ टू बी मोर क्रिटिकल कंपेयर टू जो समरी है। आउटलाइन फिर हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस को, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस, क्या एलिमेंट्स हैं, क्या स्टेजेस इन्वॉल्व हैं कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस में, हम उनको विल डिस्कस दैम इन डिटेल। देन वी विल सी व्हाट इज नेगोशिएशन। ठीक है, फिर हम डिफरेंट जो नेगोशिएशन की अप्रोचेस हैं वो देखेंगे, विल बी कंबाइनिंग एंड विल बी कंट्रास्टिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। तो ये डिफरेंट जो है बेसिकली नेगोशिएशन की टेक्निक्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग हो सकती है और इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग हो सकती है। तो इन दोनों को when we'll be seeing them again, we'll be comparing and contrasting these two approaches to negotiation. Then we'll be seeing the 5 steps in negotiation process, how the negotiation step process is done and how it is completed. तो हम इसके ऊपर negotiation process को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन of course in relation to conflict हम डिस्कस करेंगे, because conflict resolution के लिए ही negotiation आप यूज कर रहे होते हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, वेरी शॉर्टली ब्रीफली हम इसको डिस्कस करेंगे और हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी देखेंगे on to with that influence the negotiations. Then we will be seeing the role of the third parties and different functions जो हैं वो क्या हो सकते हैं in order to achieve the or in order to settle the negotiation process या negotiation पे to arrive at the negotiations and to successfully settle the conflict. What are the different options that are available to you? Third party negotiations को हम देखेंगे, cultural differences देखेंगे negotiations में, and then lastly we'll be seeing the stress management. तो with respect to stress भी हम will be discussing a number of factors with respect to stress. ठीक है, कि उसमें stress की को we'll see कि कैसे define किया जाता है, कैसे जो है वो stress की क्या factors, antecedents क्या हैं stress के, फिर how you can manage the stress. तो ये different चीज़ें हैं, outcomes क्या हैं stress के, functional dysfunctional stress क्या है, तो ये सारी चीज़ें in relation to stress हम discuss करेंगे। तो let's start with the conflict. आपको सबसे पहले तो of course we need to know that what do we mean by conflict, so we need to define conflict. ठीक है, तो conflict is basically a process that begins when one party perceives that another party has negatively affected or is about to negatively affect something that the first party cares about. ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट देयर नीड टू बी 2 पार्टीज। एक पहला पॉइंट तो ये हो गया कि एटलीस्ट 2 पार्टीज होनी चाहिए टू द कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अगर 2 पार्टीज नहीं है, अगर पार्टी एक है तो फिर ऑफ कोर्स आपकी अपने साथ ही कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ऑफ कोर्स हम जब ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट पढ़े हैं ऑफ कोर्स आपकी अपने साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, बट यू नो व्हेन वी आर डिस्कसिंग द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट
तो उसमें क्या है कि हम इसको इस तरह से ले रहे हैं कि जब एटलीस्ट देयर नीड टू बी टू पार्टीज, किसी भी कोई देयर वुड बी समबडी एल्स जिसके साथ आपकी क्या होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगी, दो पार्टीज होंगी जिनमें कॉन्फ्लिक्ट होगी, और उसके बाद ये है कि हर पार्टी, उनमें से एक पार्टी जो है वो एटलीस्ट ये परसीव कर रही है कि जो दूसरी पार्टी है उसका बिहेवियर और समथिंग फ्रॉम द अदर पार्टी, कुछ देयर इज सम बेसिस ऑन विच अ कॉन्फ्लिक्ट कैन अराइज between the two parties, या कुछ any behavior or anything on the part of the other party can affect you negatively. किसी भी चीज का किसी दूसरी पार्टी की आपके ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ सकता है. So the point in an ongoing activity when an interaction crosses over to become inter-party conflict. So encompasses a wide range of conflicts that people experience in organizations. So देयर कैन बी आ नंबर ऑफ, जो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी हमने बात की कि वो आ सकता है ऑर्गेनाइजेशंस में, देयर कैन बी कॉन्फ्लिक्ट. और हम ये देखते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बेसिकली इसकी काफ़ी एंटीसीडेंट्स काफ़ी हो सकते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के. ठीक है, देयर कैन बी नंबर ऑफ एंटीसीडेंट्स ऑफ दिस इन कॉन्फ्लिक्ट टू अकर, फॉर द कॉन्फ्लिक्ट टू अकर एट द वर्क प्लेस, या कॉन्फ्लिक्ट कब अराइज होगा. A few of the situations need to exist. एक तो देखें इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ गोल्स अगर होगी तो फिर चांसेस हैं देन दैट बेसिकली ये सीड्स हैं कॉन्फ्लिक्ट के. ठीक है, दैट कैन गिव राइज टू कॉन्फ्लिक्ट. ये वो चीज़ें हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट को गिव राइज, विच कैन गिव राइज टू कॉन्फ्लिक्ट. अगर ये इनमें से कोई भी एक एलिमेंट होगा तो देन कॉन्फ्लिक्ट कैन अराइज. बट इफ ऑल दीज एलिमेंट्स आर मिसिंग तो फिर इसका मतलब है कि देयर इज नो बेसिस नहीं रहती ना कॉन्फ्लिक्ट की, एंटीसीडेंट्स नहीं रहते, बेसिस नहीं रहती कॉन्फ्लिक्ट के, आप ये कह सकते हैं. ठीक है, तो जैसे आप ये देखें कि इस इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ गोल्स हैं, डिफरेंसेस ओवर इंटरप्रिटेशंस ऑफ फैक्ट्स, डिसएग्रीमेंट्स बेस्ड ऑन बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस. तो इन चीज़ों को हम आगे जाके अपना फर्दर डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि कैसे जो है वो आपकी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अराइज हो सकती है. विल बी डिस्कसिंग दैम वन बाय वन इन द अपकमिंग स्लाइड्स. अच्छा, आप ये देखें कि जो ट्रांजिशंस हैं कॉन्फ्लिक्ट इन कॉन्फ्लिक्ट थॉट के अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट, आपको सबसे पहले जो है वो ट्रेडिशनल व्यू मिलेगा ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विच सेज दैट इट इज द बेसिकली इट वाज प्रेवलेंट इन फ्रॉम 1930s टिल 1940s द ट्रेडिशनल व्यू, एंड इट बिलीव दैट ऑल कॉन्फ्लिक्ट इज हार्मफुल एंड मस्ट बी अवॉइडेड. ठीक है, तो ये जो ट्रेडिशनल व्यू है ये बेसिकली था कि जब भी वेन एवर देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पार्टीज या दो ह्यूमन बींग्स के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट होगी तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट वन ऑफ द टू पार्टीज इज प्लेइंग नेगेटिव, वो बिहेवियर गलत बिहेवियर शो कर रहे हैं और बोथ द पार्टीज आर एट रॉन्ग एंड, या वो उनमें मिसकम्युनिकेशन है, देयर इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द टू पार्टीज, देयर इज लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द टू पार्टीज. ठीक है, या कोई ना कोई देयर इज मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू पार्टीज. ठीक है, देयर इज कोई इनफ कोहेसन नहीं है या मिसअंडरस्टैंडिंग है या लैक ऑफ ट्रस्ट है और एनी. ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि दोनों इसका बेसिकली ट्रेडिशनल व्यू थॉट दैट जो दोनों पार्टीज हैं दे आर एट अ मिस्टेक व्हेन अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू पार्टीज इज अराइजिंग. ठीक है, तो उन इसका मतलब है कि दे हैव सम बिहेवियरल इश्यूज हैं या कोई प्रॉब्लम्स हैं विच नीड टू बी एड्रेस्ड बिकॉज दिस व्यू बेसिकली व्यूड द कॉन्फ्लिक्ट एज नेगेटिव ऑलवेज. तो इसमें ये जो व्यू है बेसिकली ये एक नेगेटिव व्यू है कॉन्फ्लिक्ट का. इसने ट्रेडिशनल व्यू जो था इट वाज अ नेगेटिव व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इट टेंडेड के इट शुड बी एलिमिनेटेड. ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को दे कंसिडर्ड कि सिंस इट इज अराइजिंग आउट ऑफ द नेगेटिव बिहेवियर्स ऑफ द पार्टीज देयरफॉर इट हैज टू बी एलिमिनेटेड फॉर जो फंक्शनिंग के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग के लिए या वर्क प्लेस की या वर्क यूनिट की या वर्क ग्रुप की, वॉट एवर इट इज, उसकी फंक्शनिंग के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट है इट नीड्स टू बी एलिमिनेटेड बिकॉज इट वाज अगेंस्ट द हार्मनी, इट वाज कंसिडर्ड अगेंस्ट द हार्मनी ऑफ द ग्रुप. ठीक है, उसके ग्रुप के हार्मनी के अगेंस्ट कंसिडर किया जाता था और नेगेटिवली इसको परसीव किया जाता था कॉन्फ्लिक्ट को. देयरफॉर इट वाज बेसिकली थॉट ऑफ के जी ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज नेगेटिव एंड शुड बी डिस्करेज्ड एंड शुड बी एलिमिनेटेड फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द वर्क प्लेस. Then came because see, so the view basically believed that conflict resulted from poor communication, lack of openness and failure to respond to employees' needs. यानी अगर आपकी needs fulfill नहीं हो रही employees की तो in that case भी conflict arise हो सकती है. Communication अगर poor है तो conflict arise हो सकती है. अगर openness नहीं है between the parties, यानी कि अगर sufficient communication और openness नहीं है, you are hiding, आप अपनी filtering कर रहे हैं जैसे, या आप अपनी hide कर रहे हैं जो true emotions हैं या जो real whatever actually is actual on the surface,
you're hiding something out, you're not being that open, यानी कि poor communication poor है, तो फिर as a result conflict will arise. तो आपने ये देखा कि ये तीनों चीज़ें किस चीज़ के attributes हैं, bad behavior के, ठीक है. तो एक्चुअली तो आपकी कम्युनिकेशन पोर नहीं होनी चाहिए, एक्चुअली ओपननेस भी होनी चाहिए, और एक्चुअली आपको यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू द एम्प्लॉइज नीड्स. अगर ये चीज़ें नहीं होंगी और इन्हीं की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, ठीक है, तो फिर तो इसका मतलब है कि वो कॉन्फ्लिक्ट वाकई नेगेटिव, एंड दैट इज एक्चुअली अकरिंग ड्यू टू द नेगेटिव बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ द पार्टीज. कोई भी पार्टी जो है उसकी नेगेटिव बिहेवियर की वजह से ही इसका मतलब है कि वो कॉन्फ्लिक्ट कॉज हो रही है. तो कॉन्फ्लिक्ट इन बेसिस के ऊपर तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है. तो दैट इज़ वाई अब हम फिर आगे जाके देखते हैं कि ये जो व्यू है कॉन्फ्लिक्ट का, ये किस हद तक या इन चीज़ों की वजह से ही, और व्हाट कैन बी द रीजंस, या इन वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं होनी चाहिए. तो आगे जाके जब हम अपनी फर्दर डिस्कशन करेंगे तो विल बी मेकिंग इट मोर क्लियर. अच्छा, ह्यूमन रिलेशंस व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो फिर आया, दैट वाज थ्रू 1940s टिल 1970s, देन इट प्रिवेल्ड द ह्यूमन रिलेशंस व्यू. सो इसने थोड़ी सी इसमें इम्प्रूवमेंट आई, इट हैड एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट के बारे में इसने इम्प्रूव डेफिनेशन दी और इम्प्रूव जो है वो थॉट दी अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट. एंड द व्यू बेसिकली इट वाज बेसिकली द बिलीफ दैट द कॉन्फ्लिक्ट इज नेचुरल टू अकर एंड इनएविटेबल आउटकम ऑफ एनी ग्रुप. अगर आप व्हेन एवर, इट्स नॉट ओनली अबाउट एक ग्रुप है, बेशक वो दो लोगों का ही ग्रुप क्यों ना हो, ऑफ कोर्स नॉर्मली दो लोगों का ग्रुप नहीं होता, बट यू नो अगर बेशक वो ग्रुप जितने भी, स्मॉलर द साइज ऑफ द ग्रुप और द लार्जर द साइज ऑफ द ग्रुप, व्हाट एवर द साइज ऑफ द ग्रुप इज, या इवन इफ देयर आर टू पीपल हु आर वर्किंग टुगेदर, ठीक है, तो उनके बीच में भी देयर कैन बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दोज टू पीपल, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो प्योर कम्युनिकेशन की वजह से ही हो. इट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी कि वो आपको आपकी जो नीड्स हैं, यू आर नॉट एबल टू मीट आपकी जो नीड्स हैं वो दूसरी पार्टी बिकॉज ऑफ जो हमने पीछे उसमें देखिए लैक ऑफ ओपननेस से हो, या फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू एम्प्लॉइज नीड. इट्स नॉट नेसेसरी कि वो इन्हीं वजूहात के बिना पर कॉन्फ्लिक्ट हो. ये जो व्यू था, इसने मतलब बेसिकली इसने ये रिकग्नाइज किया कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपका जो नेगेटिव बिहेवियर्स की वजह से ही कॉन्फ्लिक्ट अराइज करे, बट देयर कैन बी अ नंबर ऑफ रीजंस जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट कैन अराइज व्हेन द पीपल आर वर्किंग टुगेदर इन अ ग्रुप और इन अ टीम और इन एन ऑर्गेनाइजेशन, या किसी भी एक सेटअप में जब व्हेन टू पीपल और मोर देन टू पीपल दे आर वर्किंग, तो फिर उसका मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट कैन अराइज, राइट. सो इट इज अ नेचुरल आउटकम ऑफ वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स और इन व्हाटएवर शेप यू आर वर्किंग टुगेदर. जो भी इसका स्ट्रक्चर है, जिस भी स्ट्रक्चर को आप फॉलो कर रहे हैं, जब आप इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इट्स एन इनएविटेबल आउटकम कि कॉन्फ्लिक्ट. एंड यू मस्ट हैव सीन, अगर आप अपने घर में ही देख लें, अपनी फैमिली को देख लें, तो इवन वॉट एवर आपके क्लोजेस्ट जो फैमिली मेंबर्स हैं उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है. इवन टू ब्रदर्स एंड टू सिस्टर्स, दे कैन हैव कॉन्फ्लिक्ट ओवर नंबर ऑफ इश्यूज, ठीक है, बट यू नो इट्स नॉट दैट यू आर नॉट केयरिंग अबाउट द अदर पार्टी के लिए आप केयर भी कर रहे होते हैं अबाउट, यू नो आपकी कम्युनिकेशन भी पुअर नहीं होती मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आप लेट्स अस्यूम, लेकिन दे स्टिल whenever there are two people or more working together, तो it's a natural outcome के conflict जो है that will arise. उसके बाद interactionist view of conflict जो है that was basically human relations view ने तो ये accept किया कि it's not necessary कि conflict जो है वो negative behaviors की वजह से ही हो और it should be eliminated in all cases, but the conflict can arise as a result of the natural, it can be a natural outcome. अब जो interactionist view था, it took the जो conflict की thought है in literature है, it took it steps forward, ठीक है. और इस बिलीफ ने बेसिकली ये कहा कि कॉन्फ्लिक्ट जो है इट्स नॉट नेसेसरी कि दैट कॉन्फ्लिक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव, कॉन्फ्लिक्ट कैन बी पॉजिटिव एज वेल, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट कैन गिव राइज टू पॉजिटिव आउटकम्स. उससे आप पॉजिटिव जो कंक्लूजन्स हैं या आउटकम्स जो हैं कॉन्फ्लिक्ट से, दैट दे कैन बी रीप्ड. देयरफॉर इट्स नॉट नेसेसरी दैट कॉन्फ्लिक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव, बट इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल. सो व्हेन यू नो, so it's the belief that the conflict is not only a positive force in a group, but it is absolutely necessary for a group to perform effectively. So not only positive, but also the interactionist view जो था, इसकी जो बड़ी contribution थी वो यही थी कि इन्होंने ये कहा कि we can make use positively of the conflict, एक ये, और दूसरा ये कि आप उससे performance को enhance कर सकते हैं using the conflict, ठीक है. तो on the basis of the conflict you can enhance how it happens, we can come up of little आपके लिए शायद सरप्राइजिंग भी होगा if you're reading or going through this or listening it for the first time, कि how the conflict in the work group or the conflict among people that can lead to positive outcomes. That might be a little strange for you to know, लेकिन हम आगे जाके अपनी कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे और आगे डिस्कस भी करेंगे कि how that is positive. कॉन्फ्लिक्ट पॉजिटिव कैसे हो सकती है या उससे हम पॉजिटिव आउटकम्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं,
ठीक है. सो दिस इज द बेसिकली द इंटरेक्शनिस्ट व्यू इज द करंट व्यू ऑन कॉन्फ्लिक्ट. अच्छा, अब इंटरेक्शनिस्ट कॉन्फ्लिक्ट, इंटरेक्शनिस्ट व्यू जो था इसने टू फॉर्म्स दी कॉन्फ्लिक्ट की फर्दर प्रेजेंट की, और उनमें से एक फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है और दूसरी डिसफंक्शनल. सो बिकॉज दे व्यूड दैट कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट नेसेसरली ऑलवेज नेगेटिव, बट इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एंड इट कैन जनरेट पॉजिटिव आउटकम्स एज वेल. जब कॉन्फ्लिक्ट पॉजिटिव होती है या पॉजिटिव आउटकम्स जनरेट करे तो उसको इन्होंने नाम दिया फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट का. एंड व्हेन इट इज नेगेटिव और इट इज जनरेटिंग द नेगेटिव आउटकम्स, दैट वाज नेम्ड एज द डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट. तो जो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है दैट इज बेसिकली द कॉन्फ्लिक्ट दैट सपोर्ट्स द गोल्स ऑफ द ग्रुप एंड इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस. और जो डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है वो हम उसको कहेंगे जो हिंडर करती है ग्रुप परफॉर्मेंस को. ठीक है. अब फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप परफॉर्मेंस को कॉन्फ्लिक्ट कब इन्हांस करती है? व्हेन वी कॉल, उस वक्त तो हम उसको फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट तो कहते हैं, लेकिन फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट के एंटीसीडेंट्स क्या हैं? फंक्शनल, व्हेन द फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस. ठीक है. या वो कब होती है? तो अब बेसिकली देखें, एक तो टास्क कॉन्फ्लिक्ट जो है दैट कैन बी फंक्शनल इन नेचर, लेकिन लो लेवल्स ऑफ टास्क कॉन्फ्लिक्ट. अब सबसे पहले उससे ये देखते हैं कि टास्क कॉन्फ्लिक्ट है क्या. सो टास्क कॉन्फ्लिक्ट इज अ कॉन्फ्लिक्ट ओवर कंटेंट्स एंड गोल्स ऑफ द ग्रुप. ठीक है. तो जो भी कोई ग्रुप है जिसके जो भी गोल्स हैं उनके ऊपर, इफ ओवर द गोल्स ऑफ दैट ग्रुप अगर कॉन्फ्लिक्ट हो, ठीक है, तो वो क्या होगी? टास्क कॉन्फ्लिक्ट होगी. फॉर एग्जाम्पल, आप गोल्स ये अपने करें कि जी कुछ भी, कोई भी, यू कैन टेक एनी एग्जांपल कि अगर इफ देयर 6 मेंबर्स ऑफ द ग्रुप और उन्होंने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी है, तो 3 या 4 मेंबर्स ये कह रहे हैं कि जी वी शुड टारगेट, हमें इस जो ग्रुप है उसको टारगेट करना चाहिए. फॉर एग्जांपल, हमें जो टेलीकॉम की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे मार्केटिंग करनी चाहिए. और कुछ 1 or 2 मेंबर्स से दैट नो दैट मार्केट इज वी शुड नॉट, हमें ऑन द बेसिस ऑफ इस रीजन की वजह से हमें टेलीकॉम में मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए, बट वी शुड मार्केट शुगर इंडस्ट्री को हमें मार्केट करना चाहिए. सो जस्ट एन एग्जांपल. ठीक है, कि कैसे जो है, अब ये क्या है कि ये जो टास्क है आपका, जो आपका ग्रुप गोल है, विच गोल क्या है कि आपने अपनी मार्केटिंग को इंटेंसिफाई करना है और सेल्स इतनी करनी है. यू हैव टू इंक्रीज योर सेल्स, सो दैट इज द गोल. अब उस गोल की अचीवमेंट के लिए हाउ यू हैव टू अचीव दैट गोल. ठीक है. उसका जो कंटेंट्स हैं उनके ऊपर, या उसको अचीवमेंट के लिए जो वेज हैं, या हाउ, क्या आपने डिजाइन प्लानिंग कैसे करनी है. सो दैट इज बेसिकली ओवर द कंटेंट्स ऑफ दैट गोल. जो आपके डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं. सो कॉन्फ्लिक्ट क्या है? दैट अराइजेस एज द रिजल्ट ऑफ डिसएग्रीमेंट. तो प्रोसेस हम कॉन्फ्लिक्ट का भी आगे जाके देखेंगे. तो बेसिकली किसी इन बेसिस के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट होगी ओवर द टास्क, ओवर द कंटेंट ऑफ द टास्क, वो होगी टास्क कॉन्फ्लिक्ट विच इज रिलेटेड स्पेसिफिकली टू द टास्क. आपने उस टास्क को परफॉर्म कैसे करना है, तो बेसिकली उसके कंटेंट्स के ऊपर है. ठीक है. आपने कोई रिसर्च प्रपोजल बनाना है, सो एक जॉइंट रिसर्च प्रपोजल बनाना है, तो उसमें जो है आप फॉर एग्जांपल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है आपके कोलीग या कोवर्कर के साथ. ठीक है. आप यू से कि जी इतनी एलोकेशन इसमें मशीनरी की होनी चाहिए, आपका कोवर्कर कहे नहीं जी इतनी एलोकेशन इसमें स्टेशनरी की होनी चाहिए. ठीक है. तो इस तरह से, या तो इस तरह की जो है, ये क्या है, देयर बेसिकली दिस इज टास्क कॉन्फ्लिक्ट है. तो इसी तरह ही फिर जो आपका, सो दिस इज बेसिकली द रिसर्च हमें ये कहती है कि प्रेफरेबली लोअर लेवल्स जो टास्क कॉन्फ्लिक्ट के हैं, दे आर लो टू मॉडरेट लेवल ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है, दे आर बेसिकली फंक्शनल. ठीक है. तो फंक्शनल का क्या मतलब है कि दे विल बी गुड फॉर यू, गुड फॉर द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप. ठीक है. तो फंक्शनल आर द वंस विच आर गुड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप और विच विल इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप. ठीक है. तो ये हम रिसर्च हमें ये स्टडीज शो करती हैं कि जो टास्क कॉन्फ्लिक्ट है दैट कैन बी फंक्शनल बट लोअर एंड मीडियम लेवल्स ऑफ द टास्क कॉन्फ्लिक्ट. इसी तरह जो रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट है, इसके बारे में ये इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल रिलेशंस, यानी कि मेरे और आपके, या मेरे और मेरे कॉलीग के कोवर्कर के इंटरपर्सनल रिलेशंस व्हिच हैव नथिंग टू डू विद द परफॉर्मेंस ऑफ द टास्क. गोल के साथ, टास्क के साथ, जो हमारी फॉर्मल रोल्स हैं उनके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ड्यू टू इंटरपर्सनल रीजंस, ड्यू टू, ठीक है, अपने इंटरपर्सनल रिलेशंस की वजह से, आपकी इंटरपर्सनल रीजंस की वजह से, अब मैं अगर if I start feeling that the other person, ये जो दूसरा ग्रुप मेंबर है या मेरा टीम मेंबर है, ये she is showing attitude,
ठीक है, इफ दैट इज माय परसेप्शन, या उसकी मेरे बारे में ये परसेप्शन हो, ठीक है, या और ड्यू टू इंटरपर्सनल अगर मैं ये समझूं कि वो मुझे फेयरली ट्रीट नहीं कर रहा या कर रही, और या वो मुझे ये समझे, तो ये क्या है, ये रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट है दैट इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ द अनहेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन दैट ग्रुप मेंबर्स के बीच में। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट होगी दैट विल बी डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि देखिए उससे आपको कोई आउटकम्स में इंप्रूवमेंट नहीं आ सकती जो रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, विच इज नॉट टास्क ओरिएंटेड। देयरफॉर वो क्या होगा कि उससे परफॉर्मेंस वो डिक्लाइन करेगी एज अ रिजल्ट ऑफ, क्योंकि आप तो अपने रिलेशनशिप्स जो हैं उनको सुलझाने में या उन पर्सनलाइज हो जाएंगी चीजें ना, तो इट्स बेसिकली पर्सनलाइज्ड है ये, इट्स नॉट फॉर्मल या ऑफिशियल नेचर की कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, पर्सनलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट है, देयरफॉर इट्स नेगेटिव। फिर जो प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट है दैट इज अगेन रिलेटेड टू कि आपने प्रोसेस करना कैसे है। जैसे एक प्रपोजल के हमने एग्जांपल ली, तो उस प्रपोजल को आपने कैसे राउट करना है, ठीक है, कहाँ से आपने उसको वेट करवाना है, कहाँ से उसको अप्रूव करवाना है, हाउ एंड व्हेन दैट विल बी डन। तो इन चीज़ों के बारे में अगर कॉन्फ्लिक्ट होती है तो दैट विल बी द प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट दैट इज अगेन रिलेटेड टू द कंप्लीशन ऑफ द टास्क। सिंस वो टास्क से रिलेटेड है तो वो जब दो मेंबर्स में कॉन्फ्लिक्ट होगी तो वो अगेन दैट विल बी फंक्शनल इन नेचर बट नॉट टू हाई, क्योंकि जब बहुत ज्यादा हाई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो फिर एलिमेंट ऑफ डिस्ट्रस्ट आ जाता है। लेकिन जब एक मीडियम या लो लेवल की कॉन्फ्लिक्ट हो तो वो फंक्शनल इसलिए रहती है क्योंकि फिर उसमें आपको जब दोनों पार्टीज जो हैं वो दे आर एंटर इनटू डिसएग्रीमेंट्स, तो दोनों अपने अपने आर्गुमेंट्स दे रही होती हैं, अपने अपने लॉजिकल आर्गुमेंट्स दे रही होती हैं, रैशनल्स प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो एज अ रिजल्ट हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस सोल्यूशन के ऊपर वो अराइव करेंगी वो एक पॉजिटिव और मोर फेवरेबल सोल्यूशन होगा, ज्यादा एक अच्छा सोल्यूशन होगा, बिकॉज उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग ज्यादा होगी, उसमें डेलिब्रेशन ज्यादा होगी, दैट इज वाई। अच्छा, इसमें डिफरेंट स्टेजेस जो हैं इसकी, इसमें पोटेंशियल ऑपोजिशन और इनकम्पैटिबिलिटी इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है कि आपकी देखिए तीन इसमें फर्दर, एक तो देखिए मैंने आपको बताया कि एंटीसीडेंट्स है कॉन्फ्लिक्ट के, कि जब अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट किसी भी दोनों पार्टीज के बीच में राइज होनी है तो उससे पहले ये इनमें से कोई ना कोई चीज होगी। एक तो आपके यहाँ कम्युनिकेशन में डिफरेंसेस होंगे, ठीक है, आप हैं और आपका कोवर्कर है या आपका जो मैनेजर है, बॉस है, ठीक है, अब आपके बॉस के साथ कम्युनिकेशन डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल वेवलेंथ में डिफरेंस है, आपका बॉस आपको कुछ करने के लिए कह रहा है, राइट, एंड यू ब्रिंग दैट वर्क, एंड व्हेन यू ब्रिंग इट, व्हेन यू डू इट, यू ब्रिंग इट टू योर बॉस एंड योर बॉस सेज नो, आई डिड नॉट से इट दिस वे, इट वाज टू बी डन दिस वे, ठीक है। तो ये क्या है, ये कम्युनिकेशन गैप है। तो इसमें क्या है कि बेसिकली ड्यू टू हम कम्युनिकेशन को आगे पढ़ेंगे और हम देखेंगे कैसे कम्युनिकेशन चैनल जो है और उसमें कौन से डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इनकोडिंग है मैसेज की, सेंडर। तो इस केस में आपका जो बॉस है वो एक सेंडर है, कम्युनिकेशन का मैसेज वो यानी दे रहा है आपको, ही इज अ सेंडर, ठीक है। अब वो द वे ही इज इनकोडिंग द मैसेज, ठीक है, दैट मे नॉट बी डिकोडेड बाय यू, ठीक है, और इन द सेम वे आपने उसको डिफरेंटली डिकोड किया है बिकॉज ऑफ द नॉइज हो सकता है कम्युनिकेशन चैनल में, देयर कैन बी नंबर ऑफ नॉइजेज इन द कम्युनिकेशन चैनल एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो जो मैसेज है वो सिमेंटिक्स में हो सकता है, ठीक है, आपका जो कनोटेशंस में डिफरेंसेस हो सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज में डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, और देयर कैन बी अ नंबर ऑफ डिफरेंसेस कम्युनिकेशन जो है वो, इसका मतलब है पुअर कम्युनिकेशन या वीक कम्युनिकेशन के रिजल्ट में या नॉइज इन द कम्युनिकेशन चैनल के रिजल्ट में आपके जो कॉन्फ्लिक्ट है दैट कैन अराइज। एक तो ये वजह हो सकती है कॉन्फ्लिक्ट अराइज करने की, ठीक है, लेकिन इट कैन बी, ये जस्ट एंटीसीडेंट है कॉन्फ्लिक्ट के, ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्ट हैज नॉट अ रीजन बट इट कैन गिव राइज टू कॉन्फ्लिक्ट। इसी तरह स्ट्रक्चर जो है दैट कैन गिव राइज टू कॉन्फ्लिक्ट, जैसे साइज एंड स्पेशलाइजेशन। अब एक ग्रुप है, अगर जितना ग्रुप साइज ज्यादा होगा, जितनी स्पेशलाइज्ड उसकी एक्टिविटीज उस ग्रुप की ज्यादा होंगी, उतना ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने के भी चांसेस ज्यादा होंगे। इसी तरह जुरिस्डिक्शनल क्लैरिटी और एम्बिग्विटी, जितनी एम्बिग्विटी ज्यादा होगी उतनी आपका जो है वो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने के चांसेस ज्यादा होंगे। रूल्स जितने अनक्लियर होंगे उतना ही देयर विल बी मोर चांसेस के ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट आएगी। इसी तरह मेंबर गोल इनकम्पैटिबिलिटी, जो मेंबर्स हैं अगर उनके और गोल्स के बीच में इनकम्पैटिबिलिटी होगी तो अगेन देयर विल बी चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो लीडरशिप स्टाइल्स अगर डिफरेंट होंगे, अगेन अगर पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल है, कौन सा लीडरशिप स्टाइल है, तो एज पर दैट जो है वो सिचुएशन के साथ फिट नहीं करे, जब लीडरशिप पढ़ेंगे आगे तो उसको भी देखेंगे कि दैट कैन गिव राइज टू कॉन्फ्लिक्ट। इसी तरह रिवॉर्ड सिस्टम्स, अगर एक ग्रुप, दो ग्रुप्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में और हर ग्रुप जो है वो अगर विन लूज वो परसेप्शन है उनकी कि विन लूज सिचुएशन है, यानी कि एक ग्रुप को, क्योंकि रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के आपको पता लिमिटेड होते हैं, और अगर ये परसेप्शन है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट विल विन ओनली एट द, एक ग्रुप जो है वो उसको रिसोर्सेज अगर मिलेंगे तो वो दैट विल बी एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर ग्रुप, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो ये क्या है कि
रिवॉर्ड सिस्टम्स जो हैं, या आप ये परसीव करें कि जी टोटल ऑर्गेनाइजेशन में यानी कि टोटल पूल इनकम का इतना ही है या जो कैश है उसका पूल इतना ही है, उसमें से अगर आपके कोलीग को इन बोनस मिल जाएगा तो आपको नहीं मिलेगा, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब ये क्या है कि ये एक विन लूज सिचुएशन है, तो इस तरह कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकती है। डिपेंडेंस इंटरडिपेंडेंस, अगर जितनी ज्यादा इंटरडिपेंडेंस होगी ग्रुप्स में उतनी ही कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे, जितनी इंडिपेंडेंस ग्रुप में होगी उतने ही चांसेस होंगे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी। तो ये सारे स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं जिनकी बेस के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस तरह मतलब जैसे अगर हम ये देखें कि दो लोग हैं वो आर परफॉर्मिंग टू डिफरेंट रोल्स, ठीक है, एक ग्रुप में, जैसे एक ग्रुप में मैं मार्केटिंग, आई एम बेसिकली द क्रेडिट मैनेजर एंड माय कॉलीग इज द जो सेल्स मैनेजर है। अब उसका काम क्या है कि सेल्स को प्रमोट करना, उसकी इंसेंटिव ये है कि ज्यादा से ज्यादा सेल्स करे। मेरा ये है कि सिंस सेल्स आर मेड ऑन द क्रेडिट, ठीक है, तो मैं ये देखूंगी, मैं क्रेडिट मैनेजर हूँ, आई विल ट्राई टू, मैं ज्यादा से ज्यादा स्क्रूटनाइज करने की कोशिश करूंगी एप्लीकेशंस को, और फिर मैं उसको अप्रूव करूंगी फॉर द सेल कस्टमर को, ठीक है, उसको क्रेडिट लिमिट को मैं अप्रूव करूंगी फॉर द सेल्स, बिकॉज मेरा अपना स्टेक है, मेरे डिफरेंट, सो हमारी गोल इनकम्पैटिबिलिटी है, ठीक है, बिकॉज यू नो आप डिफरेंशियल हमारे गोल्स हैं, हम अपने अपने गोल्स को कम्पीट, जो मेंबर गोल इनकम्पैटिबिलिटी एज अ रिजल्ट। तो ये सारे स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं जो कि बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट को कॉन्फ्लिक्ट कैन अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ दैम, नॉट नेसेसरी कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज ही हो, लेकिन ये इनमें से कोई ना कोई बेस बनती है या बेस बन सकती है। इसी तरह पर्सनल वेरिएबल्स जो आपके इमोशंस हैं, वैल्यूज हैं, ठीक है, आपका जो मूड है, समटाइम्स यू आर कमिंग इन अ बैड मूड, अब फैमिली के में घर में लड़के आए हैं, ऑफिस आए हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा कि आपका यू आर इन अ बैड मूड, आप हर किसी के साथ लड़ने को फिर होते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट कैन अराइज। तो एक तो इमोशनल इस तरह के जो डिस्टर्बेंसेज हैं वो दे कैन गिव राइज, फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेज जो है दे कैन गिव राइज टू कॉन्फ्लिक्ट एज वेल। आपके जो डिफरेंशियल पर्सनैलिटी टाइप्स हैं, दे कैन, जैसे एग्रीएबल जो इंडिविजुअल्स हैं, इट कुड बी कि वो दे कैन एंटर कम, उनकी लेसर हो उनकी कॉन्फ्लिक्ट की टेंडेंसी, ठीक है। या दूसरे जो पर्सनल वेरिएबल्स हैं सच एज आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, मे बी कि आप किसी की बॉडी लैंग्वेज के साथ, उसके स्माइल करने के स्टाइल के साथ, समहाउ वी हैव ऑलवेज मेट पीपल जिनके साथ हम कंफर्टेबल समहाउ नहीं होते, विदाउट एनी रीजन वी आर नॉट कंफर्टेबल, ठीक है, तो ड्यू टू द पर्सनल ट्रेट्स और पर्सनल वेरिएबल्स ऑफ द अदर इंडिविजुअल्स। तो ये सारी रीजंस हो सकती हैं कॉन्फ्लिक्ट अराइज करने की। तो ये फर्स्ट स्टेप है कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस में। उसके बाद जो सेकंड स्टेज है दैट इज बेसिकली द कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप परसीव कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट को और फिर आप फील कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट को। अनलेस एंड अंटिल यू आर ओनली परसीविंग द कॉन्फ्लिक्ट, आप ये समझ रहे हैं कि यार हमारे अंदर ये डिफरेंसेस हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बहन भाइयों की एग्जांपल दी, तो यू नो कि आप में और आपके भाई में या बहन में ये डिफरेंसेस हैं, ठीक है, बट स्टिल यू लव योर ब्रदर और सिस्टर, एंड क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं अराइज होती, ठीक है, बट दैट इज द परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज द अवेयरनेस बाय वन और मोर पार्टीज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंडीशंस दैट कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर कॉन्फ्लिक्ट टू अराइज। लेकिन जब फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट हो जाए ना, व्हेन द two parties or one of the two parties feels कि yes there is something wrong, ठीक है, आपके नेगेटिव इमोशंस आ जाएं या आपका एंग्जाइटी आपके अंदर आ जाए, टेंशन आ जाए, फ्रस्ट्रेशन आ जाए, आपको ये लग रहा है कि आपके गोल्स, आपके आउटकम्स, यू आर बीइंग अफेक्टेड समहाउ थ्रू द बिहेवियर या जेस्चर्स की वजह से, अदर पार्टी के या दूसरी पार्टी के इंटरेस्ट की वजह से या गोल इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से, तो दैट इज वेयर बेसिकली द कॉन्फ्लिक्ट जो है वो वहां पर फिर अराइज होती है एट द लेवल ऑफ द फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, उसके बाद इंटेंशंस जो है हमारी, दे बेसिकली जो हमारी ये शो करती हैं इंटेंशंस कि आपने जो कॉन्फ्लिक्ट है देर बेसिकली द मीडिएशन है बिटवीन द जो फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट है उसके बीच में और परसीव्ड फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट और जो आपका एक्चुअल बिहेवियर उसके बीच में। तो जो आप इंटेंशंस होंगी वो डिपिक्ट करेंगी आपके बिहेवियर को, ठीक है, तो हाउ यू इंटेंड टू हैंडल दैट कॉन्फ्लिक्ट, तो इंटेंशंस शो दैट, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें स्टेज है बिकॉज, लेकिन नॉट नेसेसरली ऑलवेज इंटेंशंस लीड टू बिहेवियर, समटाइम्स आपकी इंटेंशंस डिफरेंट होती हैं लेकिन एक्चुअली आप डिफरेंट बिहेव करते हैं, लेकिन नॉर्मली इंटेंशंस को बिहेवियर का इंडिकेटर समझा जाता है। उसके बाद डायमेंशंस क्या है, देखें दो इसमें डायमेंशंस दी गई कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग इंटेंशंस की, एक तो कोऑपरेटिवनेस है और दूसरी क्या है असर्टिवनेस। कोऑपरेटिवनेस में क्या होता है कि अटेम्प्टिंग टू सेटिस्फाई द अदर पार्टीज concerns, और assertiveness में क्या होता है, you are attempting to satisfy your own concerns. So बेसिकली इसमें फिर देर आर 5 बेसिकली इसमें जो है इन डायमेंशंस में 5 तरह की इंटेंशंस दी गई हैं इन डायमेंशंस में, competing, collaborating, avoiding, accommodating and compromising. तो अब अगर आप यहाँ पर देखें कि हो क्या रहा है कि जो assertiveness है उसमें और cooperative is along the horizontal axis and assertiveness is along the vertical axis.
अच्छा, अब जो अवॉइडिंग स्टेज है, अवॉइडिंग को अगर आप देखें, अगर आप ये डायमेंशन या इंटेंशन यूज कर रहे हैं, इंटेंशन है आपकी अवॉइडिंग, उसमें क्या होता है कि यू आर बोथ अनकोऑपरेटिव एंड अनअसर्टिव, यानी कि आप यू आर जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट। आपको पता है आप फील कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट को, लेकिन यू आर अवॉइडिंग इट, एंड मतलब आप उसको, दूसरी पार्टी को अवॉइड कर रहे हैं या उस प्रॉब्लम को अवॉइड कर रहे हैं, तो आप जो है वो यू आर नीदर कोऑपरेटिव नॉर यू आर असर्टिव टुवर्ड्स सॉल्विंग दैट कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा ये अकोमोडेटिंग आपकी इंटेंशन हो सकती है। अकोमोडेटिंग में क्या है कि यू आर कोऑपरेटिव एंड यू आर अनअसर्टिव, यानी कि आप दूसरी पार्टी जो है उसके जो इश्यूज हैं या जो उसकी डिमांड्स हैं या उसकी जो नीड्स हैं, यू आर ट्राइंग टू फिल देम अप, ठीक है, और आप अपनी जो है उनको यू आर ट्राइंग टू, आप अपनी को साइडलाइन कर रहे हैं या बाईपास कर रहे हैं, उसको आप कह रहे हैं कि नहीं, जैसे यू थिंक कि यार इट्स ओके, बट यू ट्राई टू सॉल्व द अदर पार्टीज इश्यूज या उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें, उनको रिकग्नाइज करें। फिर उसके बाद कॉम्पीटिंग जो है उसमें क्या है कि यूर इट इज द एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ अकोमोडेटिंग। इसमें क्या है कि यू आर टोटली असर्टिव एंड टोटली अनकोऑपरेटिव। आप दूसरी की डिजायर या विशेज या वांट्स को नहीं देख रहे हैं बिल्कुल भी, और आप अपनी को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड द fourth one is the collaborating, which is exactly the opposite of avoiding. कोलैबोरेटिंग में क्या हो रहा है कि आप यू आर बोथ कोऑपरेटिव और असर्टिव, आप जो फॉर्म्स हैं इंटेंशंस की आपकी वो हैं, यानी कि आप दूसरी और अपनी दोनों पार्टीज की जो हैं उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, डिजायर्स को और वांट्स को और नीड्स को। एंड द मिडिल वे इज द कॉम्प्रोमाइजिंग, जिसमें बेसिकली आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, यानी कुछ जस्ट गिव अप समथिंग एंड टेक समथिंग, एंड मतलब कुछ शेयर ऑफ द पाई ले लें और कुछ दे दें, और इसी तरह दूसरी पार्टी कुछ ले ले और कुछ दे दे, मतलब कुछ लेने और कुछ देने वाला, कॉम्प्रोमाइजिंग, दैट इज इन द मिडिल। बिहेवियर जैसे मैंने आपको बताया, इट्स अराइजिंग फ्रॉम द इंटेंशंस बट नॉट नेसेसरली ऑलवेज। समटाइम्स आपकी मिसकैलकुलेशंस होती हैं, समटाइम्स जो दूसरी पार्टी है, आपने जैसे ये आपने इंटेंशन आपकी है कि कोलैबोरेटिंग इंटेंशन है आपकी, या कॉम्प्रोमाइजिंग इंटेंशन है या अकोमोडेटिंग है, लेकिन जब दूसरी पार्टी का बिहेवियर आप देखते हैं कि वो दैट इज टोटली असर्टिव, तो उसमें फिर आप क्या करेंगे कि दैट यू मे ऑल्सो भी, आप भी अवॉइडिंग टैक्टिक या कॉम्पीटिंग टैक्टिक पे शायद आप फिर आ जाएंगे, यू माइट ऑल्सो कम ऑन द कॉम्पीटिंग एज अ रिजल्ट ऑफ द बिहेवियर ऑफ द अदर पार्टी, ठीक है। तो समटाइम्स ये है कि आपका बिहेवियर जो है एक्चुअली वो डिफरेंट होता है देन योर इंटेंशंस। तो बेसिकली जो कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिटी कॉन्टिन्यूम है, इसके ऊपर अगर हम बिहेवियर को देखें तो आप ये जो है ना कॉन्टिन्यूम आपकी बुक में दिया हुआ है, और उसमें ये कि आपका जो जैसे फॉर एग्जांपल कम जो अगर आप जैसे क्लासरूम में एक टीचर पढ़ा रहा है स्टूडेंट को मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है या कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा, वो आपसे क्वेश्चन पूछे, तो दैट इज द माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जो बिहेवियर है वो जो माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिहेवियर है इन रिस्पॉन्स टू अ कॉन्फ्लिक्ट, तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट व्हेन योर स्टूडेंट इज अनएबल टू अंडरस्टैंड, तो वो एक माइल्डेस्ट फॉर्म है। और आहिस्ता आहिस्ता उसमें स्पेरिटी होती जाती है, जैसे जैसे मतलब आपका बिहेवियर ज्यादा एग्रेसिव होता जाएगा, वायलेंट आप ज्यादा होते जाएं, या आप टोटली आप दूसरी पार्टी को डिस्ट्रॉय करना चाहें, दैट इज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ जो है वो कॉन्फ्लिक्ट, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ बिहेवियर है। अच्छा, रेजोल्यूशन टेक्निक्स, यू कैन यूज अ नंबर ऑफ रेजोल्यूशन टेक्निक्स सच एज द प्रॉब्लम सॉल्विंग आप करने की कोशिश करें। सुपरऑर्डिनेट गोल्स, यानी कि दो पार्टीज उनके कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स हैं, उनको कोई ऐसा गोल दे दें जो कि उनके उन गोल्स को सुपरऑर्डिनेट करे और वो दोनों उसको म्यूचुअली मीट करने के लिए स्ट्रगल करें और कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो। देन एक्सपेंशन ऑफ रिसोर्सेज है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर विन लूज गेम है तो आप इफ यू कैन एक्सपैंड द रिसोर्सेज, एक्सपैंड करें ताकि दोनों पार्टीज फिर म्यूचुअली बेनिफिट कर सकें और रिजॉल्व हो जाए कॉन्फ्लिक्ट। अवॉइडेंस जो हमने पहले पढ़ी, स्मूथिंग, ट्राई टू स्मूथ आउट, कॉम्प्रोमाइज हमने देखी, अथॉरिटेटिव कमांड, ठीक है, ऑल्टरिंग द ह्यूमन वेरिएबल, उसमें चेंज करने की कोशिश करें, स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स जो हमने डिस्कस किए उनमें चेंज करने की कोशिश करें, सच एज ग्रुप का स्ट्रक्चर वगैरह चेंज करने की, उसको रिस्ट्रक्चर करने की एक्सेट्रा। फिर कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करें और ब्रिंगिंग इन द आउटसाइडर्स दैट कैन समटाइम्स, जैसे काउंसलिंग वगैरह कंसल्टेंसी आप समटाइम्स ले सकते हैं। डेविल्स एडवोकेट को समटाइम्स आप अपॉइंट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट एंड रिस्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमने पहले देखा। तो आउटकम्स हमने देखा कि बोथ लास्ट स्टेज है आउटकम्स, जिसके जैसे कि हमने फंक्शनल आउटकम्स भी डिस्कस किए और डिसफंक्शनल भी डिस्कस किए आउटकम्स, ठीक है। और फंक्शनल आउटकम्स आई विल जस्ट गो थ्रू देम वंस फॉर यू। दैट इंक्रीज ग्रुप परफॉर्मेंस हो सकती है, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ डिसीजंस हो सकती है, क्रिएटिविटी और इनोवेशन हो सकती है, बिकॉज जब आप कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं वो अपने अपने आइडियाज लेके आ रही हैं तो फिर इनोवेशन आ सकती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव हो सकती है, ठीक है। और डिसफंक्शनल इसमें कैसे है कि अगर बहुत ज्यादा
हाई लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, ठीक है, बट नॉट, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट रिलेशनशिप, तो हर हाल में डिसफंक्शनल ही है। बाकी जो 2 फॉर्म्स हैं वो कब डिसफंक्शनल होंगी, जब बहुत ज्यादा हायर लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो टास्क या प्रोसेस, तो वो उसमें एज अ रिजल्ट ग्रुप कोहेसिवनेस इफेक्ट होगी, उसकी इफेक्टिवनेस होगी, डिस्ट्रस्ट आएगा और एज अ रिजल्ट डिसफंक्शनल हो जाएगी वो कॉन्फ्लिक्ट। सो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट को आप क्रिएट कर सकते हैं बाय थ्रू रिवॉर्डिंग डिसेंट एंड पनिशिंग कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडर्स, बिकॉज समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशंस में लोग होते हैं जो कि जो वो लोग जो चैलेंज करते हैं स्टेटस को जो मैनेजमेंट ने रिजेक्ट कर दिए किसी आइडियाज को, इवन देन डिसेंटर्स आर दोज पीपल, दे स्टिक टू देयर आइडियाज एंड देयर बिलीव्स इवन व्हेन दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लार्जर ग्रुप और द अदर ग्रुप. So such people in the organization should be encouraged, they should be rewarded, and those people who are the yes people, they should be punished, because अब contemporary societies organizations में जो challenge है उसमें you cannot survive without जो functional conflict के बगैर creativity और innovation नहीं आ सकती, creative problem solving नहीं आ सकती, organization flourish नहीं कर सकती और compete नहीं कर सकती. ठीक है, अब जो negotiation है ये क्या है, ये बेसिकली ये भी एक बार्गेनिंग की, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए आप negotiations करते हैं ना with the other party, तो it's basically the bargaining. It's a process in which 2 or more parties they exchange goods or services and they attempt to agree on the exchange rate for them. ठीक है, किस रेट के ऊपर आपने निगोशिएशंस आपकी कैसे होंगी, जैसे आप कुछ लेते हैं कुछ देते हैं, एक्सचेंज रेट कोई डिसाइड होता है फॉर द गुड्स और द सर्विसेज और एनीथिंग जिसके ऊपर भी आपकी कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी आपका आइटम है उसके ऊपर, बार्गेनिंग आइटम जो भी है उसके ऊपर आप नेगोशिएट करेंगे. ठीक है, और जैसे ओवर द वेजेस में यूनियन में और जो मैनेजमेंट है उसके अंदर बार्गेनिंग होती है, ओवर द वेजेस उनमें नेगोशिएशंस होती हैं. ठीक है, कि आप एक पार्टी फिर इतना देती है, दूसरी इतना लेती है और एंड सो ऑन. तो बेसिकली 2 जनरल अप्रोचेज हैं, एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग है और दूसरी इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग है. डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में क्या होता है कि जो एक पार्टी है दैट नेगोशिएशन जो है दैट इज बेसिकली सीक्स टू डिवाइड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, अब विन लूज सिचुएशन है ये डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में. तो ये इसमें क्या है कि आपका जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पाए है वो आप नेगोशिएशन इस तरह से होती है कि देयर इज अ विन लूज सिचुएशन है और पार्टी जो है वो ये समझ रही होती है कि देयर इज अ विन लूज सिचुएशन और जो आउटकम्स हैं वो इस तरह से आपके जो है वो दे विल बी एक पार्टी जो वो विन विन करेगी एट द कॉस्ट ऑफ द अदर पार्टी. सो दैट इज डिस्ट्रीब्यूट. तो उसमें नेगोशिएशन जो है वो फिर इस तरह से आप जो है वो जैसे सेटिंग डेडलाइंस फॉर द अदर पार्टी. ठीक है, और लेकिन जो इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग है ऑन द अदर हैंड उसमें क्या होता है कि द नेगोशिएशन दैट सीक्स 1 or more सेटलमेंट्स दैट कैन क्रिएट अ विन विन सिचुएशन. ठीक है, तो उसमें आप ज्यादा ऑप्शंस देखते हैं. सो योर इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग जो है ये मोर, जैसे हमने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक्स में देखा था या स्ट्रेटजीज में या इंटेंशंस में जैसे हमने देखा था, तो उसमें ज्यादा बेसिकली इंटीग्रेटिव क्या है, इफ यू रिकॉल, तो उसमें मोर एक कोलैबोरेटिव काइंड ऑफ अप्रोच है ना, जिसमें आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने इंटरेस्ट को भी सेफ गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी पार्टी के डिजायर्स और इंटरेस्ट को भी सेफ गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं. यू ट्राइंग टू कम अप एट एन आउटकम, अराइव एट एन आउटकम दैट इज म्यूचुअली बेनिफिशियल फॉर बोथ द पार्टीज. ठीक है, जो उसमें विन विन सिचुएशन क्रिएट हो सके. ठीक है, तो दैट इज बेसिकली, जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं कि अगर एक ऑरेंज है और 2 लोग हैं, ठीक है, और अब वो ऑरेंज जो है हु विल टेक दैट ऑरेंज. ठीक है, बिकॉज आपने क्या करना है, आपने उसका केक बनाना है और जो दूसरा पर्सन है उसने क्या करना है, ही हैज टू मेक अ जूस, ऑरेंज जूस उसने बनाना है और आपने ऑरेंज केक बनाना है. तो व्हाट विल यू डू. ठीक है, अब इसमें विन लूज डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग क्या होगी कि जब दोनों पार्टीज जो है वो ये अटेम्प्ट करें कि दैट आई कीप दैट ऑरेंज. ठीक है, बिकॉज दोनों अपना अपना इंटरेस्ट सेफ गार्ड करना चाह रही हैं. एक पार्टी जूस पीना चाह रही है और दूसरा क्या करना चाह रही है, उसका केक बनाना चाह रही है, उसके पील्स का, जो ऑरेंज पील्स जो केक में डलते हैं. ठीक है, अब ये तो एक डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग है. और इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग में क्या है कि कम अप एट ऑल्टरनेट, डू थिंक थ्रू, सोचें, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे के गोल्स को समझें. ठीक है, और फिर ये देखें कि क्या पॉसिबल आउटकम्स, ऑल्टरनेटिव, व्हाट कैन बी द ऑल्टरनेटिव आउटकम्स. ठीक है, तो उसमें व्हेन यू विल थिंक थ्रू, जब आप दूसरी पार्टी को भी अकोमोडेट करेंगे, उसके भी देखेंगे प्रॉब्लम्स और ये देखेंगे कि व्हाट द अदर पार्टी वांट्स. जब आप म्यूचुअली थिंक करेंगे और दूसरी पार्टी को भी अंडरस्टैंड करेंगे
करेंगे, उसको भी यू विल कंसिडर दैट। फिर क्या होगा कि देन यू कम अप विद ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस, फिर आपके पास ऑप्शंस निकल आती हैं जो कि म्यूचुअली बेनिफिशियल हो। इस केस में अब वो इस एक ऑरेंज में क्या बेनिफिशियल ऑप्शन निकल सकती है? ऑफ कोर्स देयर कैन बी दिस बेनिफिशियल ऑप्शन दैट पील दैट ऑरेंज, वन पार्टी टेक्स द पील जिसने केक बनाना है, और दूसरी पार्टी जो है वो उसका जूस बना ले, ठीक है, जो ऑरेंज होगा उसके अंदर उसका दूसरी पार्टी जूस बना ले। तो ये क्या है, अब ये देखें कि इट वाज अ विन विन, उसका आउटकम निकल आया है, ठीक है। लेकिन इसका विन लूज आउटकम भी हो सकता था कि एक पार्टी उसको ले ले एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर पार्टी। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव टैक्टिक्स हैं वो क्या है, मेक एन एग्रेसिव ऑफर फर्स्ट, ठीक है, और दूसरा क्या है, रिवील अ डेडलाइन, ठीक है। तो इसमें फिर क्या होता है कि जब आप एक एग्रेसिव ऑफर दूसरी पार्टी को दे देते हैं तो फिर दूसरी पार्टी जो है वो भी आपको, ऑफ कोर्स जब आप उसको हाई एग्रेसिव, जैसे इसमें ऑरेंज के केस में आप ये कहेंगे कि टेक होल्ड द ऑरेंज, तो ये क्या है, ये एग्रेसिव ऑफर है, ठीक है। और फिर आप उसको डेडलाइन दें कि जी बाय दिस टाइम यू हैव टू कम अप विद यू नो डिसीजन। तो उससे क्या होता है कि फिर जो दूसरी पार्टी है वो समटाइम्स आपका जो है, जैसे यूनियन में और मैनेजमेंट में जब एग्रीमेंट्स हो रहे होते हैं, निगोसिएशंस हो रही होती हैं, तो में अक्सर ये होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को फिर वो डेडलाइन दे देते हैं, दे से दैट बाय दिस डेट, या जैसे आपको जो एम्प्लॉयमेंट ऑफर है, जब व्हेन यू गो टू द एम्प्लॉयर, तो आप का जो एम्प्लॉयर है अगर वो ये परसीव कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव टैक्टिक क्या होगा कि आप अपने एम्प्लॉयर को ये कहें, जो आप जिसको आपने इंटरव्यू दिया है, कि जी आई हैव ऑल्टरनेटिव, यू फील कि यार दिस ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, और अगर आपको यहाँ से ऑफर मिल जाए तो दैट्स गुड। लेकिन आप क्या करेंगे कि आप उसको ये कहें कि जी आई हैव, जब बिफोर लीविंग यू से दैट आई हैव मेनी ऑप्शंस, मेरे पास और भी ऑफर्स हैं, ऑप्शंस, एंड आई हैव टू मेक अ डिसीजन बाय दिस डेडलाइन। तो ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग का टैक्टिक है। आपने एक एग्रेसिवली एक काइंड ऑफ आपने ऑफर कर दी कि आई एम अवेलेबल बट आई हैव अदर ऑप्शंस टू, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपने उसको डेडलाइन भी बता दी कि बाय दिस डेट यू हैव टू मेक अ डिसीजन, या यू विल। तो इससे क्या होगा कि अगली पार्टी जो है वो एक जल्दी अपनी काउंटर ऑफर करेगी, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली, और इंटीग्रेटिव टैक्टिक में क्या है, दैट यू बार्गेन इन टीम्स एंड यू पुट इश्यूज ऑन द टेबल, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। डिफरेंसेस हैं इंडिविजुअल पर्सनालिटी डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे हमने एग्रीएबलनेस को देखा कि दे कैन बी, दोज आर द पीपल दे कैन बी वीकर ऑन द डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, एंड एक्सट्रोवर्ट्स, सेम फॉर एक्सट्रोवर्ट्स, एंड द डिसएग्रीएबल एंड इंट्रोवर्ट्स दे आर द बेस्ट पीपल। उसके बाद हमने देखा कि मूड एंड इमोशन आपका अफेक्ट करता है, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हाउ इट अफेक्ट्स, सो द एबिलिटी टू शो एंगर दैट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, और पॉजिटिव मूड्स एंड इमोशंस दे हेल्प इन इंटीग्रेटिव, बिकॉज क्या है, फिर आप ऑल्टरनेटिव ज्यादा आउटकम्स एंड कोलैबोरेटिव उसमें आ जाते हैं। सो जेंडर जो है, मेन एंड वुमेन, इनकी आपको पता है नेगोशिएशन स्टाइल्स में डिफरेंसेस होते हैं, और जो वुमेन है दे जनरली टेंड टू नेगोशिएट लेस कंपेयर टू मैन। डिफरेंट जो पार्टीज हैं, थर्ड पार्टी नेगोशिएशन में आ जाता है कि मीडिएटर्स हैं, जो कि दोनों पार्टीज की कॉन्फ्लिक्ट को सुनते हैं और दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बट देयर मीडिएटर्स आर नॉट द वंस हु कैन मेक अ डिसीजन, ठीक है। आर्बिट्रेटर ऑन द अदर हैंड इज द वन हु कैन मेक अ डिसीजन, दोनों पार्टीज में सुने क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, और फिर सोल्यूशन एक प्रेजेंट करे, और दैट सोल्यूशन विल बी बाइंडिंग अपॉन बोथ द पार्टीज। फिर जो कंसल्टेंट्स हैं, दे आर बेसिकली इम्पार्शियल थर्ड पार्टी, दे आर स्किल्ड इन द कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि कंसल्टेंट्स से समटाइम्स जब कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो सर्विसेज हायर कर सकती हैं, ठीक है। फिर ग्लोबल इम्प्लीकेशंस इसकी ये हैं कि कुछ कल्चर्स जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट को डिफरेंटली हैंडल करते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करते हैं कंपेयर टू द अदर कल्चर्स, सच एज जापानीज एंड यूएस मैनेजर्स, दे व्यू कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंटली। यूएस मैनेजर्स आर मोर लाइकली टू यूज competing tactics, while the Japanese managers are more likely to use compromising and avoidance tactics, ठीक है। और आपको पता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, यूएस जो है मोर इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है, और जापान जो है वो कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी है, ठीक है। सो नेगोशिएशन स्टाइल्स भी इसी तरह ही डिफरेंट हैं। जस्ट एन एग्जांपल दैट ब्राजीलियंस दे से नो मोर ऑफन देन द अमेरिकन्स और द जापानीज पीपल, एंड नॉर्थ अमेरिकन्स यूज फैक्ट्स टू परसुएड, अरब्स यूज इमोशन, एंड रशियंस दे यूज द asserted ideals for the conflict resolution processes. अच्छा, इसके बाद we have the stress and the management of the stress. So you know that when you have the high demands, but on the other hand the resources are limited to meet those demands, then what happens is that the stress arises. So of course there is not many of the studies, they report that mostly the people in the US, 54% of the people, they feel stressed because they are overworked. About 55% they report that they are overwhelmed by the overwork, and that is why they feel stressed. And 59% of the people report that they report stress because of the lack of time.
56% they report stress because they don't have time to complete the tasks, and 45% they feel that multitasking is too much, that is why they feel stressed. तो आप ये देखें कि किस तरह नंबर ऑफ रीजंस हो सकती हैं, लेकिन नॉर्मली क्या है कि ओवरवर्क की वजह से, ठीक है, कंपीटिंग टास्क्स हैं और जो टू मच यू हैव टू डू टू मच इन टू लिटिल टाइम, एज अ रिजल्ट जो आप देखें कि ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशनल प्रेशर्स की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिमांड ज़्यादा हैं, मल्टी स्किलिंग रोटेशंस हैं, ठीक है, और जो हेड काउंट्स हैं उनको वो मिनिमम ऑर्गेनाइजेशंस रखना चाहती हैं बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी। तो एज अ रिजल्ट क्या है कि स्ट्रेस जो है वो बढ़ गया है, वर्क ओवरलोड बढ़ गया है इंडिविजुअल्स के ऊपर, ठीक है। अब कम लोग जो हैं वो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं जो पहले ज़्यादा परफॉर्म कर रहे थे बिकॉज ऑफ द ले ऑफ्स एक्सेट्रा। तो एज अ रिजल्ट स्ट्रेस है। स्ट्रेस इज अ डायनेमिक कंडीशन इन विच एन इंडिविजुअल इज कन्फ्रंटेड विद एन अपॉर्चुनिटी, कंस्ट्रेंट और डिमांड दैट इज रिलेटेड टू व्हाट ही और शी डिजायर्स एंड फॉर विच द आउटकम इज परसीव्ड टू बी बोथ अनसर्टेन एंड इंपॉर्टेंट। सो वो चीज जिसके लिए आपके ऊपर स्ट्रेस हो, रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड हैं, आउटकम्स उसके इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए और अनसर्टेन भी हैं, तो यू विल फील स्ट्रेस। मॉडल आप देखें कि इसमें देयर आर नंबर ऑफ पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस सच एज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे इन्वायरमेंटल अनसर्टेन। तो हम ऑलरेडी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को डिस्कस कर सकें कि ऑर्गेनाइजेशंस को और एम्प्लॉइज को उनके बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको इनकी डिटेल्स नहीं बता रही, दे आर जस्ट वेरी रेलिवेंट टू देम, आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग द मॉडल टू यू। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स को भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे जो टास्क है, जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल को जब हमने डिस्कस किया तो उसमें हमने देखा कि कैसे जो टास्क डिमांड्स हैं वो सिग्निफिकेंस अगर ना हो, रोल एम्बिग्विटी हो, क्लैरिटी ना हो रोल्स में, ठीक है, अगर आपको सिग्निफिकेंट ना लगे टास्क और इस तरह की जो चीज़ें हैं, डिमांड्स रोल की ज़्यादा हैं, ठीक है, और उसके बाद जो रिसोर्सेज हैं आपके पास वो कम हैं, इंटरपर्सनल डिमांड ज़्यादा हैं। इसी तरह जो पर्सनल फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके जो स्ट्रेस हैं, कॉन्सिक्वेंसेज को, सच एज द फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, फैमिली इशूज़ आपको हो जाते हैं, आपको इकोनॉमिक इशूज़ होते हैं, पर्सनैलिटी की समटाइम्स प्रॉब्लम्स होती हैं। वन इंडिविजुअल फील्स मोर स्ट्रेस्ड द अदर इंडिविजुअल बिकॉज ऑफ द पर्सनैलिटी, ए टाइप पर्सनैलिटीज, बी टाइप पर्सनैलिटीज, ठीक है। तो ये इस तरह के जो डिफरेंसेस हैं, फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, आपकी परसेप्शंस के डिफरेंसेस, ठीक है। आप वन पर्सन जो है वो ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट होता है और दूसरे का ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट होता है। आप ज्यादा पॉजिटिवली परसीव कर रहे हैं सिचुएशन को, दूसरा पर्सन नेगेटिवली परसीव कर रहा है। आप योर इंटरनल आपका लोकस ऑफ कंट्रोल हम डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट इज लोकस ऑफ कंट्रोल। मैं इन चीजें आपको दोबारा नहीं बता रही, ये सारी वो चीजें हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इनका कॉन्सेप्ट मैं आपको दोबारा नहीं दे रही। जो लोग जिसका इंटरनल अगर आपका लोकस ऑफ कंट्रोल होगा तो आप ज्यादा कंट्रोल्ड सिचुएशन को फील करेंगे, यू विल बी फील लेस अंडर स्ट्रेस। सिमिलरली अगर आपकी सेल्फ एफिकेसी ज्यादा होगी, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे अबाउट द सिचुएशंस, अबाउट योर परफॉर्मेंस, यू विल बी लेस अंडर स्ट्रेस। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस और जो इन्वायरमेंटल डिफरेंसेस, ऑर्गेनाइजेशन में जो टास्क है, स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, वर्क आपका कैसे डिज़ाइंड है, प्रोसेसेस कैसे डिज़ाइंड हैं, वर्क डिज़ाइन क्या है, ये सारी चीज़ें आपके पर्सनल फैक्टर्स ये इन्फ्लुएंस करते हैं आपके स्ट्रेस को, इन द फॉर्म के स्ट्रेस आपको कैसे आ सकता है, उसके डिफरेंट सिम्टम्स हो सकते हैं, आपकी हेल्थ पे आ सकते हैं, फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स आ सकते हैं, सच एज आपको हेडेक हो गई, जैसे टेंशन हेडेक्स होती हैं, बीपी आपका राइज हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकती हैं। फिर जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में क्या हो सकता है, डिप्रेशन, यू कैन गो इन डिप्रेशन, जॉब सेटिस्फेक्शन आपकी कम हो जाए, एंग्जाइटी लेवल आपका बढ़ जाए। बिहेवियरल सिम्टम्स क्या होंगे कि आप बिहेवियर्स में चेंजेस आएंगी, इंटेंशंस टर्नओवर की बढ़ जाए, आपकी एक्चुअल टर्नओवर बढ़ जाए, एब्सेंटीज्म ज्यादा हो जाए, प्रोडक्टिविटी कम हो जाए, परफॉर्मेंस कम हो जाए, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए, एक्सेट्रा। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं इन सारे स्ट्रेस फैक्टर्स के। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी मैंने आपको बताए, ऑर्गेनाइजेशनल और इंडिविजुअल फैक्टर्स मैंने आपको बताए, और इसी तरह इंडिविजुअल डिफरेंसेस मैंने आपको बताए कि कैसे ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं स्ट्रेस को। तो कॉन्सिक्वेंसेज स्ट्रेस की हमने डिस्कस की, ये तीनों सिम्टम्स, ठीक है। अब ये देखें, ये जो ग्राफ है ये क्या शो कर रहा है कि हम हाई स्ट्रेस को और लो स्ट्रेस सिचुएशंस को शो कर रहा है और उसका इन्फ्लुएंस शो कर रहा है अपॉन द परफॉर्मेंस। तो जैसे हमने कॉन्फ्लिक्ट में देखा था कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लो टू मीडियम लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज गुड फॉर द परफॉर्मेंस। हमने ये डिस्कस किया था ना कॉन्फ्लिक्ट में कि फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट होती है जो लो टू मीडियम हो, ठीक है, और विच इज गुड फॉर द परफॉर्मेंस। इसी तरह ही और फिर जो हाई लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होगी दैट विल लीड टू बैड परफॉर्मेंस। और इसी तरह हमने स्ट्रेस में भी ये देखेंगे कि जो लो टू मीडियम लेवल ऑफ स्ट्रेस है दैट विल गिव राइज टू हायर परफॉर्मेंस। और जैसे जैसे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा उससे क्या होगा कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो जो हायर लेवल जो स्ट्रेस का होगा उसमें परफॉर्मेंस आपकी ज्यादा होगी, और जब स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाएगा तो उसमें आपकी परफॉर्मेंस जो है वो क्या होगा कि वो बिल्कुल कम हो जाएगी। तो
इन्वर्टेड आप देखें कि यू शेप है इसकी, और एट वेरी हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस performance will decline, but up to a certain level of stress performance will tend to increase. Beyond a certain level अगर stress बढ़ गया तो performance जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि up to a certain level जो stress है वो functional होता है, ठीक है, मतलब जैसे आपको अपनी डेडलाइन है, आपने वो मीट करनी है, तो एक certain level का आपको stress होता है, ठीक है, वो जो stress है वो आपको एक्चुअली हेल्प कर रहा होता है कि आप क्या करें, कि आप अपनी एफर्ट करें, इनपुट करें, वर्क करें, परफॉर्म करें। अगर आपका बिल्कुल लो लेवल ऑफ स्ट्रेस होगा, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, बिल्कुल जब व्हेन द स्ट्रेस इज एट द लोएस्ट लेवल तो परफॉर्मेंस भी लोएस्ट है, ठीक है, और यानी कि जब आपका बहुत लो स्ट्रेस है तो मतलब लो स्ट्रेस सिचुएशन है अगर, तो उसमें क्या है कि यू विल नॉट परफॉर्म। अगर आपको देखें एक परफॉर्मेंस टारगेट मिला हुआ है, ठीक है, इफ यू आर नॉट स्ट्रेस्ड अबाउट इट, अगर आप उसकी कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, इट मींस दैट यू आर नॉट कंसर्न्ड टू अचीव दैट, आप एफर्ट ही नहीं डाल लेंगे, व्हाट विल बी योर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस भी आपकी लो होगी। तो वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी को अगेन आप रिकॉल करें तो वो बेसिकली उसी तरह का ही फिनोमेनन है। एक फंक्शनल स्ट्रेस जो है वो होना चाहिए, मॉडरेट लेवल ऑफ स्ट्रेस होगा अगर, तो आपकी परफॉर्मेंस हाई होगी। अच्छा, देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस टू मैनेज द स्ट्रेस सच एज द इंडिविजुअल टाइम मैनेज एक आप करें, जैसे वर्क ओवरलोड है, आप अपनी देखिए मल्टीटास्किंग आपने कैसे करनी है, कैसे ऑर्गेनाइज करने हैं अपने इवेंट्स को, प्रायोरिटाइज उनको करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो समटाइम्स वी डोंट नो, आप डेडलाइंस के अकॉर्डिंग, इंपॉर्टेंस उनकी के अकॉर्डिंग आप उनको प्रायोरिटाइज करें। देन और समटाइम ह्यूज नंबर ऑफ आपका जो प्रॉब्लम है वो उसी से सॉल्व हो जाती है। देन इंक्रीजिंग फिजिकल एक्सरसाइज दैट कैन एनहांस, बिकॉज यू नो जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है ये बेसिकली हमारे लिए कैथारसिस होता है, इट प्रोवाइड्स कैथारसिस टू जो आप हमारे रिलीज करता है, बेसिकली जो नेगेटिव हमारे अंदर टॉक्सिन्स हैं उनको रिलीज करता है, और हमारे नेगेटिव इमोशंस की रिलीज के लिए दिस इज अ गुड सोर्स। देन रिलैक्सेशन ट्रेनिंग आप कर सकते हैं, एक्सपेंडिंग सोशल सपोर्ट नेटवर्क, बिकॉज वो दैट कैन रियली हेल्प यू समटाइम्स टू रिलीज योर स्ट्रेस। कम्युनिकेशन, जैसे हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन इज कैन बी अ गुड सोर्स टू रिलीज द स्ट्रेस। अच्छा, इसी तरह फिर ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोचेज हो सकती हैं, सच एज इम्प्रूव्ड पर्सनल सिलेक्शन और जॉब प्लेसमेंट आप इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया कि जैसे पर्सनैलिटी वेरिएबल समटाइम्स होते हैं, कुछ सम इंडिविजुअल्स आर मोर प्रोन टू स्ट्रेस, तो आप अपनी हायरिंग थोड़ी जी केयरफुल करें, जॉब के फिट के साथ फिट करें इंडिविजुअल को, कि अगर जॉब स्ट्रेसफुल है तो कैन डज दैट इंडिविजुअल हैव द एबिलिटी टू वर्क अंडर द स्ट्रेसफुल कंडीशंस, ठीक है। फिर उसमें ट्रेनिंग आप कर सकते हैं, स्ट्रेस ट्रेनिंग, यूज ऑफ रियलिस्टिक गोल सेटिंग कर सकते हैं। बहुत ओवरली हाई अगर टारगेट्स देंगे तो ऑफ कोर्स दैट कैन बी लीडिंग टू स्ट्रेस। रीडिजाइनिंग ऑफ जॉब्स कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मैनेज द स्ट्रेस। देन इंक्रीज एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, जितनी इंप्रूव करेंगे उतना ही एम्प्लॉयज जैसे उसको ओन करेंगे, कमिट करेंगे गोल्स के साथ और डेडलाइंस के साथ, और स्ट्रेस वो बेहतर मैनेज कर लेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन को अगर आप सुपरवाइजर के साथ उसके साथ इंप्रूव करेंगे तो फिर दैट कैन ऑल्सो बी लीड टू अ एक बेटर जो है वो आपके गोल्स की, उनके गोल्स में कंपैटिबिलिटी होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी एंड इंप्रूव कर सकती है सिचुएशंस को। सो व्हाट एक सबैटिकल्स एम्प्लॉइज को कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे मैंडेटरी की होती हैं कि यू हैव टू गो ऑन लीव, दैट इज बिकॉज कि आप वो दैट कैन आपको रिप्लीट कर देता है आपके रिसोर्सेज को, ठीक है, आपको में बर्न आउट, स्ट्रेस और डिप्रेशन, एग्जॉस्शन वगैरह नहीं होती उससे। सर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम्स कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने किए होते हैं। तो दिस वाज आवर टॉपिक फॉर टुडे। तो बेसिकली हमने दो डिफरेंट टॉपिक्स को आज के इसमें कवर किया है, ठीक है। हमने स्ट्रेस को देखा है और कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन को देखा है, एंड स्ट्रेस को हमने देखा है। तो इसको बेसिकली स्ट्रेस को इसीलिए इसमें कंबाइन किया बिकॉज वो बड़े जेनरिक से उसमें एलिमेंट्स और चीज़ें थी जो कि इतनी कोई देवर मोस्ट ऑफ देम देवर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, वो सारे टॉप चीज़ें कॉन्सेप्ट्स उसमें वही सारे थे जो हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो देयरफॉर आई कंबाइंड देम इनटू वन। तो आई होप द टुडेज लेक्चर वाज interesting and clear for you people. I wish you all the best. Let's see you again. Thank you very much. Allah Hafiz.